The topic of discussion is fundamental concepts of chemistry, and the subtopics are mole and Avogadro's number. So, what is mole? Mole is a physical quantity that is dimensionless, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है. A mole represents 6.022 into 10 raised to power 23 particles, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक मोल 6.022 multiply 10 raised to power 23 particles को represent करेगा. These particles can be atoms, molecules or ions. The number was discovered by Avogadro and is represented by Na. मोल को Avogadro ने डिस्कवर किया था और उसको उसने रिप्रेजेंट किया था by Na. Mole is defined as the relative atomic mass of an element, relative molecular mass of covalent compound, or relative formula mass of an ionic compound expressed in grams, represented by N and abbreviated as mole. यानी किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को, कोवेलेंट कंपाउंड के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को और आयनिक कंपाउंड के रिलेटिव फॉर्मूला मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे मोल कहेंगे. उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और एब्रिवेट करते हैं एज MOL, मोल. Next is gram atomic mass or molar mass. It is defined as mass of 1 mole atoms or 6.022 into 10 raised to power 23 atoms in gram. Example is molar mass of water is 18 grams. यानी कि एक मोल एटम्स के मास को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं. लाइक वाटर का जो मास है उसको AMU की बजाय अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे that would be gram atomic mass of water. Here is Avogadro's number, which is defined as the number of particles present in 1 mole of a substance, denoted by Na. Its value is 6.022 into 10 raised to power 23. यानी कि एक मोल सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होते हैं इक्वल्स टू Avogadro's number, उसे हम डिनोट करते हैं Na से और जो वैल्यू है that is 6.022 into 10 raised to power 23. Let's see why Avogadro considered just this number as Na. क्यों उसने सिर्फ 6.022 into 10 raised to power 23 को ही Na के इक्वल किया? वो 6 into 10 raised to power 23 को भी तो इक्वल कर सकता था ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती. Let's see. First lecture, recall it. Atomic mass equal to mass of one atom equals to A into AMU. AMU की जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे it will become A into 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Next, mass of one atom in gram would be A into 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. अगर यही मास हमें 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स का निकालना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल. नेक्स्ट, जब आप 1.66 into 10 raised to power minus 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 raised to power 23 ग्राम से, यानी कि Avogadro's नंबर से, you will get 1. A into 1 equal to A into gram. So molar mass would be A into 1 or A into grams. So हमारे पास molar mass की एक नई इक्वेशन आ गई A into GM, जबकि हमने relative atomic mass में देखा था A into AMU और A into 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम. So molar mass या जो ग्राम atomic mass है वो इक्वल होगा A into GM. क्योंकि इसमें हमने ग्राम इसलिए लगाया क्योंकि ये ग्राम एटॉमिक मास था, तो हम यूनिट जो कंसीडर करते हैं वो हम ग्राम कंसीडर कर सकते हैं. सो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए Avogadro's ने 6.022 into 10 raised to power 23 को कंसीडर किया. अगर हम कोई और अमाउंट लेते, अगर 6 ले लेते तो शायद हमारे लिए इक्वेशंस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी. सो द इक्वेशंस व्हिच वी हैव फाइनली रिड्यूस्ड आर
molar mass or gram atomic mass equal to A into 1 और A into gram. ग्राम इसलिए क्योंकि ये ग्राम atomic mass था. और 1.66 into 10 raised to power minus 24 को जब हम Avogadro's नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा that would be equal to 1. And number of moles equal to number of gram atoms. Simple. Here are the differences between atomic mass and gram atomic mass. Atomic mass is the mass of one atom of an element, while gram atomic mass is mass of 1 mole atoms of element in gram or mass of Avogadro's number of atoms in gram. Atomic mass सिर्फ किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को कहते हैं, जबकि ग्राम एटॉमिक मास एक एलिमेंट के एक मोल एटम्स के मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, या फिर किसी भी एलिमेंट के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास. Atomic mass equals to A into AMU, while gram atomic mass equal to A into GM. Let's see how number of moles are calculated. अगर हमें कोई एलिमेंट ग्राम्स में गिवन है या उसके पार्टिकल्स गिवन है या कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है तो हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई सब्सटेंस जो है वो ग्राम्स में गिवन है सो गिवन मास को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास से. अगर तो वो एक एटम है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो फिर हम उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो फिर हम फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे उसको. एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस. अगर पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें गिवन है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे. दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23. सो गिवन पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे and we will get number of moles of that particular substance. अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन है तो हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. सो गिवन वॉल्यूम को हम न्यूमरेटर में प्लेस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब. एंड इन दिस वे वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें वॉल्यूम गिवन है किसी भी गैस का या गैसियस एलिमेंट का. The remaining portion we will see in the next lecture. Thank you so much.